स्टार्ट करो भाई। Very good afternoon to all of you. Today, on behalf of Mechanical Engineering Department, BBD ITM Lucknow, I welcome you all to this session, Problem Solving and Ideation Workshop. I would like to thank your director sir as well as HOD sir to organize such type of session. I also thank our speaker, Mr. Nishant Kumar Chak, to accept our request for presenting the webinar. Now I request Juveria Fatima, student from our college, to carry forward this webinar from here now and give some glimpse about this session and about our today's speaker. Juveria. Yes, sir. Good afternoon to everyone. Mr. Nishant Kumar Chak is an entrepreneur. Along with his studies in the last 2 years, he entered in direct selling industry to develop communication skills and personality. He's currently working in a multinational company called Vestige. Vestige had started its operations in the year 2004 and is now a direct selling company dealing with world-class wellness products. It is constantly expanding its product range to introduce innovative wellness products every year. Vestige has been building a wide network of distributors, which is constantly growing every year. It has been ranked 30 in the 2020 Global 100 list of the top direct selling companies in the world by Direct Selling News. It is the company it is the only company to have received this recognition. Keeping in the above view, the Department of Mechanical Engineering, Bau Banasi Das National Institute of Technology and Management, Lucknow, is going to conduct a webinar session on problem solving and ideation workshop today. So here I would like to request the honor of your presence, Mr. Nishant. हाँ ज्वेरिया बेटा प्लीज कंटिन्यू। Am I audible? Yes, sir, you are So audible. here I would like to So here Can I I start this would session? like to request the honor of your presence. So here I would like to request the honor of your presence, Shan Kumar sir, to enlighten us today. आवाज आ रही है क्या लगा लगा हाँ निशांत प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। निशांत जी प्लीज। Okay. Thank you so much, sir, and thank you so much each and every single person which are present here and which contribute in my life. Thank you so much again. My name is Nishant Kumar, and I have passed out my BTech from Mechanical Engineering Department of BBD ITM. ठीक है, मेरा नाम निशांत है और मैंने जस्ट इसी साल 2020 में हमने अपना बीटेक पास आउट किया है। तो जब कॉलेज में एडमिशन लिया था 2016 में, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर बहुत ही मजे में गुजरा, लेकिन जैसे ही थर्ड ईयर आया तो सबके ऊपर एक प्रेशर आना शुरू हो गया था कि भाई अब फाइनल ईयर के बाद क्या करना है क्या करना है। फाइनल ईयर जैसे आया तो तब सब एकदम शांत हो गए थे और ऊपर से कोरोना ने सबको शांत कर दिया था। खैर जो भी है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे मौके आए जिससे हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो अब सोचने को बहुत सारी चीजें थी कि बीटेक पास आउट कर लिया है, अब क्या करना है क्या करना है, लेकिन तभी मेरी लाइफ में एक ऐसी इंडस्ट्री ने एंटर किया जिसको आप सभी लोग जानते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और हमने उसमें अपना करियर लगा दिया। लेकिन उससे पहले हमने कुछ की रिसर्च, क्या ये हमारे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी। तो उसको करने के बाद हमने उसको करना स्टार्ट किया और आज हम उसमें एक फर्स्ट ऑफिशियल पोस्ट जो होती है ब्रोंज डायरेक्टर की, वहां पर हम हैं। ठीक है, जैसे कि आज डिपार्टमेंट ने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और हमारा आज का टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन। अब बात रही प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में किसी भी फॉर्म में आ सकती है। ठीक है, सबसे पहली चीज हम स्लाइड को शेयर करना चाहेंगे। सर ये होस्ट को ही केवल स्लाइड करने का ऑप्शन है, तो सर प्लीज मेक मी होस्ट। Sir, am I audible?
You are audible. And KD, please permit for uploading the slide. Swati, please permit for upload. Sir, only Rohit Mitra sir can do it because sir they are host. Rohit sir, am I audible? Nishant, Nishant, you are audible. And early permission will be granted for you for uploading the slide. Please wait. Hello. 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 Ji, ma'am. Ji, ma'am. Nishant, you can share your screen now. Okay. Okay, ma'am. Thank you so much. Okay. ठीक है. Ma'am, my screen is visible. Yes, you are eligible. Please continue, Nishant. Please Okay. continue. Sir, 1 minute.
Sorry for taking the time. Ma'am, please tell me my screen is visible or not? Yes, your screen is visible. Okay, ma'am. Thank you so much. Number one, if you challenge some problem in your life, then आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम है क्या। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है क्या। कभी कभी क्या होता है कि लोग अपनी प्रॉब्लम को पहचान ही नहीं पाते हैं, इधर सॉल्यूशन ढूंढने पर लग जाएंगे। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। आगे बढ़ते, प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो करप्शन हो सकता है, हंगर, पॉल्यूशन, पॉवर्टी, वाटर सिक्योरिटी, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। बट एनालाइज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज द साइज ऑफ योर प्रॉब्लम। आपकी जो प्रॉब्लम है उसका साइज क्या है, छोटी है या बड़ी है, वो आपको कहाँ पर हिट कर सकती है। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है बहुत अच्छे तरीके से कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये हमको कहाँ तक मतलब जो है नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे पहले आपको ये चीज जानने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अब दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रॉब्लम और एक होती है अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, हम गारंटी देते हैं आप कभी आप अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाएंगे, ना ही आप कभी उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। आपको प्रॉब्लम ही नजर आती है, तो प्रॉब्लम तो वाकई में होती है, लेकिन प्रॉब्लम को आपको करना क्या है, प्रॉब्लम को आपको बदलना है चैलेंज में। ठीक है, प्रॉब्लम तो हर इंसान की लाइफ में आती है, लेकिन बस वही चीजें कुछ लोग जीत जाते हैं और कुछ में ढेर हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, एक अपॉर्चुनिटी बनानी है, उसको एक चैलेंज में क्रिएट करना है, उसको कन्वर्ट करना है, अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस करना है। ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं बनना है आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व हो सकता है इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू हो जिससे मेरी स्लाइड क्लियर शेयर ना हो पा रही हो, तो समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम सारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। नंबर थर्ड, सॉल्व इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं, छोटी हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है उसको सबसे पहले सॉल्व करो। कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, मान लेते हैं आपकी किसी भी मतलब नियर एंड डियर की मतलब तबीयत खराब है। ठीक है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आपको कोई और काम करना है, वो भी मान लो एक प्रॉब्लम के फॉर्म में आपके सामने वो काम आ गया। सबसे पहले क्या देखना है आपको, नियर एंड डियर है ना, उसको देखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो है, उसको सॉल्व सबसे पहले करना है, बाकी सब बाद में। आगे बढ़ते हैं। जनरेट पोटेंशियल सॉल्यूशन, अपने सॉल्यूशन को ढूंढो, और पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है जो हमको एक मतलब एक बेस्ट तरीके से उसको ना सॉल्व कर सके, उसको ढूंढना है पोटेंशियल सॉल्यूशन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडिएट, व्हाट इज आइडिया, व्हाट एन आइडिया। An idea is a thought which proposed to an action which help to achieve the our desired goal। ठीक है, आइडिया क्या करता है, मतलब एक एक्शन होता है जो हमें हमारा जो डिजायर्ड गोल है वहां तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है। देखो यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। You have to lot of ideas, ideas plus ideas plus ideas and eventually the great idea। ठीक है, अब देखो आपको अगर कहीं पर भी जाना है, दिल्ली जाना है मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय एयर जा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि अगर इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप उसमें से आपको कोई एक चूज करना है और एक से ही तो जाएंगे। वैसा तो पॉसिबल है नहीं कि सारे चले जाएंगे, लेकिन इतने सारे ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अगर एक ही है तो फिर मान लो, कहते हैं ना, अगर एक ही आपके पास कोई आइडिया है और मान लो एट अ टाइम अगर वो आइडिया काम ही ना किया, तब हम क्या करेंगे, तो बस मेरा तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए लॉट ऑफ आइडिया होने चाहिए आपके पास। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ ना, बेस्ट वे टू हैव अ गुड आइडिया इज टू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज। अगर आपको एक बेस्ट आइडिया चाहिए, फॉर एग्जांपल हम आपको देखते हैं, मान लेते हैं 11 प्लेयर्स की कोई भी टीम है, आपको उसमें से सिंगल या डबल कोई भी एक मतलब बेस्ट प्लेयर चूज करने हैं, तो आपके पास बहुत सारे प्लेयर होने चाहिए ना। अगर एक ही प्लेयर है आपके पास, तो ना उसमें कोई बेस्ट है, ना ही कोई बैड है, और ना ही कोई गुड है। जो है वही है, चाहे वो जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, वही है। अगर बहुत सारी चीजें होंगी ना, तो उसमें क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट कर पाएंगे, उसमें से फाइंड आउट कर पाएंगे कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिविटी इज द इंटेलिजेंस हैविंग फन। आपको क्या होना है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। बी क्रिएटिव, ऑलवेज बी क्रिएटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव माइंडेड। ठीक है, क्योंकि क्रिएटिव देखो इसको हम बोलते हैं एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में खुरापाती होना। थोड़ा सा खुरापाती होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुरापाती होंगे ना, किसी का माइक जो है ना वो म्यूट नहीं, ओके थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी वॉइस जो है ना रिवर्स आ रही है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, इस वजह से मैंने उसको। ठीक है, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अगर आप क्रिएटिव होते हैं तो उससे होता क्या है, आप थोड़ा रिसर्च पे ध्यान देते हैं।
और जब आप रिसर्च पे ध्यान देते हैं तो आपके दिमाग में आते हैं लॉट ऑफ आइडियाज और आप उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी एक बेस्ट आइडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको बताया था ना मैंने अभी, अगर नेगेटिव फोकस होगा तो नेगेटिव आइडियाज ही आएंगे, अगर पॉजिटिव फोकस होगा तो क्योंकि देखो अभी अभी आज इससे पहले भी मेरा एक सेमिनार था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है दो तरीके के जो कीड़े होते हैं ना वो दिमाग में चले जाते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। उसको चलो आप एक सीड मान लो, जैसे मान लो अगर कोई भी सीड है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, अगर आपने पॉजिटिव सीड डाल दिया, ठीक है, और एक नेगेटिव सीड डाल दिया, हम आपको गारंटी देते हैं जो पॉजिटिव सीड होता है ना उसको एक प्लांट कन्वर्ट होने में, एक बीज से एक पौधा बनने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब उसको आपको टाइम से उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, बाकी जो आसपास कचरा होता है वो सब हटाना पड़ेगा, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। कहना क्या चाहते हैं, अगर आपको पॉजिटिव आइडिया है ना उसको आपको एक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको गारंटी देता है न जाने कितनी मीटिंग्स, न जाने कितनी ट्रेनिंग्स, न जाने कितने एफर्ट्स आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद वो जो आपका आइडिया है वो एकदम राइट वे में कन्वर्ट होकर और आपको एक जो भी समझ सकते हैं, मतलब आपको आउटपुट चाहिए वो आपको मिल सकता है। लेकिन नेगेटिव आइडिया की एक खास बात होती है, ना ही किसी ट्रेनिंग की जरूरत, ना ही किसी मीटिंग की जरूरत, ना ही कोई एफर्ट की जरूरत, ऑटोमेटिकली वो आपको प्लांट छोड़ो वो पूरा का पूरा ट्री बन के खड़ा हो जाएगा। तो एक रत्ती भर भी निगेटिव आइडिया को आने नहीं देना है अपने पास। अपनी काउंसलिंग कराते रहें अपने सीनियर से, अपने जो भी पॉजिटिव माइंडसेट वाला बंदा आपके साथ में होना उसकी कनेक्टिविटी में रहें और उससे कहें कि भैया मुझे ये यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, गिव मी बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर हमको 9 डॉट्स दिए हुए हैं। अब इन 9 डॉट्स को हमको 4 स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग चल रहा होगा क्या करना चाहिए सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमसे तो हो ही नहीं पाएगा। खैर कोई नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। एवरी प्रॉब्लम हैज द सॉल्यूशन, बट हो सकता है हमें थोड़ा टाइम लग जाए उसको फाइंड आउट करने में। कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं कि भगवान ने ना प्रॉब्लम अगर बनाई है तो उसका सॉल्यूशन उससे पहले बनाया है। ऐसा कोई ताला ही नहीं बना इस दुनिया में जिसकी चाबी हो ही ना, है ना, क्योंकि बिना चाबी जो ताला होता है ना, बिना चाबी के वो बेकार है, वो किसी काम का ही नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बट दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ईच नो वन लाइन इज स्ट्रेट। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल शेयर। ये देखिए आप, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है भैया 5 लाइनें हो गई हैं। 5 के लिए नहीं बोला था, 4 स्ट्रेट लाइन के लिए बोला था। थैंक यू सो मच ट्राई करने के लिए, ऑलवेज बी क्रिएटिव। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा किया, क्रिएटिविटी अपनी दिखाई। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो हमें बेस्ट लगा वो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्राउंड रूल है। ओके ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट डू लाइक अगेन। ठीक है, क्योंकि इस पे स्क्रीन पे ना दिक्कत हो रही है, फिर आपको ही विजिबल नहीं होगा कुछ भी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझने में, क्योंकि हम तो बोल के चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ग्राउंड रूल है क्रिएटिव होने के। ओके थैंक यू, इसको भी आप क्लीन स्वीप कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू। थिंक आउट, फाइंड सम ब्लॉकेज। ठीक है, आपको क्या करना है, हमेशा एक क्रिएटिव माइंडसेट में रहना है। आपको आउटसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाहर सोचना है। कभी कभी हम क्या, देखो आपको आगे समझ में आएगा, वो थोड़ा सा इशू है उस वजह से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कभी कभी लोग क्या करते हैं कि लिमिटेशन लगा देते हैं। अरे मतलब वो पता है, बाकी काम करना तो छोड़ो, सोचने पे भी लिमिटेशन लगा देंगे कि भैया इससे ज्यादा तो हम सोच ही नहीं सकते। अरे भाई कम से कम सोचो तो सही, अगर आप कहीं कुछ करने का सोचोगे नहीं, हम गारंटी देते हैं कभी कुछ होएगा ही नहीं। क्योंकि एक अभी हमने एक मतलब हम बुक पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स ऑलवेज बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, कि लाखों मीलों की जो दूरी होती है ना उसकी शुरुआत भी केवल एक सिंगल कदम से ही होती है। अगर आपको लाखों मील जाना है, लाखों मील को छोड़ दो, बीबीडी से निकल के ना बीबीडी के मेन गेट पे भी आना है ना, तो क्लास से भैया मतलब कदम को बाहर निकालना पड़ेगा। घर से जाना होगा बीबीडी तो कदम बाहर निकालना पड़ेगा, वरना जो दूरी है ना बीबीडी की वो दूरी बनी रहेगी, वो कम नहीं होने वाली कभी भी। तो इस चीज को समझ जाओ जितना जल्दी हो सके। ठीक है, ठीक है, हम आपको बताना चाहते हैं कभी भी किसी की भी आइडिया को क्रिटिसाइज ना करें। कभी कभी क्या होता है कि मान लो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और कोई भी प्रॉब्लम है और हम सभी लोग अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं, तो होता क्या है कभी कभी उसका आइडिया है ना तो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। भैया क्रिटिसाइज क्यों कर, उसका भी आइडिया आइडिया है ना, कुछ तो सोच विचार करने के बाद उसने दिया होगा। ठीक है, आगे सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, सारे आइडियाज को ना एक्सेप्ट करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कोई भी नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस ना करें जब भी कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो या कोई भी आइडिया शेयर हो रहा हो, तो नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहें, बच्चे उस चीज पे ना जाएं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि देखो लिखा हुआ ना, अवॉइड प्रोटेक्टिंग योर ओन आइडियाज। जैसे कि हमने मान लो कोई भी आइडिया दे दिया, अब हम उसको लेकर ना डिफेंसिव हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, कह रहे नहीं भैया मेरा आइडिया तो एकदम ही सही है, आप कैसे बोल सकते हो मेरे को गलत। अरे भाई गलत और सही दो ही चीजें होती हैं, या तो सही होंगे या गलत होंगे। सही बोल दिया तो अच्छा, गलत बोल दिया तो बुरा, ऐसा थोड़ी ना चलता है सर, गलत भी हो सकते हो आप, ठीक है। तो दूसरे के आइडिया की ना थोड़ी सी कदर करो, ठीक है, इस चीज को आप समझो। आइडिया किसी का भी हो, आइडिया अच्छा होता है, उसकी कदर करो आप, कि क्या पता वो सच में एक अच्छा आइडिया हो, आप वहां से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसको भी अप्लाई करो। हमें थोड़े ना देखते हैं कि वो बच्चा है या बड़ा है, जैसा भी है, अरे आइडिया दे रहा है ले लो, अगर आपको अच्छा लग रहा है रखो, नहीं अच्छा लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी एंड फॉरगेट लिमिटेशंस। हमेशा क्रिएटिव माइंडसेट में रहो, अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, ऑलवेज सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनो, क्योंकि प्रॉब्लम तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कुछ ना करे कोई ना, केवल आपको केवल कुछ भी ना करना हो, खाना ही खाना हो, तब कोई ना प्रॉब्लम, मम्मी बुला रही है किचन से जाना पड़ेगा लेने, ये वो फलाना, मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी पे फोकस करो, अगर आप अपॉर्चुनिटी पे फोकस करोगे ना तो की तलाश करो और लिमिटेशंस को आप दो या फिर भूल जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो क्रिटिसिज्म इज अलाउड, ठीक है, मैंने बोला था कि अभी क्रिटिसिज्म नहीं अलाउड है। देखो हम एक चीज बोलते हैं कभी कभी कोई भी काम को करने के लिए कि क्वालिटी मैटर, क्वांटिटी डजंट मैटर, लेकिन हम आइडिया की किस्मत को थोड़ा सा उल्टा करना चाहेंगे। देखो लिखा भी हुआ है, जनरेट एज मेनी आइडियाज एज पॉसिबल, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। आइडिया के केस में क्वालिटी मैटर करती है, हम यहाँ नहीं बोल सकते कि क्वालिटी मैटर नहीं करती, बट क्वांटिटी भी मैटर करती है। लॉट लिटिल लिटिल आइडियाज, दिस विल बी यार लॉट ऑफ आइडियाज, ठीक है। छोटे छोटे आइडिया कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ से आप बहुत सारी चीजों को ना रिकनेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर भी, कि एक एक कदम चलते रहेंगे, कोई भी काम को थोड़ा करते रहेंगे। यूनिट 5 होती हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर, उसके अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं, एक एक करके करते रहेंगे तो ना सारा हो ही जाएगा, ठीक है। तो करने की आदत डालें। क्रिटिसिज्म के बारे में हमने बता ही दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन, व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू आइडियाज। कोई भी नया आइडिया आया, आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन किया, दैट इज इनोवेशन, ठीक है। कोई भी न्यू आइडिया आ सकता है, कोई प्रोजेक्ट बनाने का आ सकता है, कोई भी और काम करने का आ सकता है। उसको क्या करना है, अगर कोई आइडिया आ रहा है और जिसको आप अपने लेवल से अपने एंड से कर सकते हैं तो करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेक प्लान, प्लानिंग बहुत जरूरी है, विदाउट प्लान यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो देखो यहाँ पर एक चीज लिखी होगी, हाँ, मेकिंग प्लान्स, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। बिना प्लान के जो आपका गोल है ना, वो केवल आपकी एक इच्छा है। विदाउट प्लान के ना आपका जो गोल है वो केवल आपकी एक इच्छा है, गोल नहीं है। देखो हम आप यहाँ पर कुछ चीजें बताना चाहेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोगों के बहुत, वो ड्रीम्स आपके छोटे भी हो सकते हैं, वो ड्रीम्स आपके बड़े भी हो सकते हैं, है ना। तो ड्रीम्स कहते हैं, ड्रीम्स सर पूरे नहीं हो रहे, अब क्या करें हम, तो सर ऐसी इंडस्ट्री के अंदर में तो वहां पर ड्रीम्स की बात चलती है। लेकिन ड्रीम्स से भी हटके हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि ड्रीम्स को आप एक काम करो, आप गोल में कन्वर्ट करो। अब ड्रीम गोल में कैसे कन्वर्ट होगा? ड्रीम गोल में कन्वर्ट होगा उसके आगे डेट डालने से। डेट डालोगे, जब तक आप डेट नहीं डालोगे आप प्लानिंग ही नहीं करोगे किसी भी चीज की। हर चीज की प्लानिंग करते हैं ना विद डेट, इस तारीख में हमको ये करना है, इस तारीख में हमको ये करना है, इस तारीख में वो करना है। तो डेट डाल के ड्रीम के आगे उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करो। देखो अगर कहीं तक आपको पहुंचना है ना, तो 3 चीजें होनी चाहिए आपके पास। पहले तो आपके दिमाग में प्लानिंग होनी चाहिए, दूसरी ऑन पेपर प्लानिंग होनी चाहिए, और चौथी चीज उसका होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। इसको हम बोलते हैं KUI। थोड़ा बहुत सारी चीजें हमने स्लाइड में मेंशन नहीं की हैं, लेकिन हम आपको ऐसे ही बताएंगे KUI का क्या मीनिंग होता है। KUI का मीनिंग होता है नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अभी हम किसी भी चीज के बारे में कोई भी टॉपिक उठा लें, किसी भी चीज के बारे में अगर हम किसी से भी कोई भी डिस्कशन करें, वो जानता होगा, हाँ जी सर ठीक है, उसके बाद वो अंडरस्टैंड, उसको समझ भी होगी, भगवान की दया से ना उसको समझ भी अच्छी खासी है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सर किया ही नहीं कभी, सर होगा भी नहीं कभी कुछ अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। आप कितने भी आइडिया रख लीजिए, कोई भी प्लान बना लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस चीज को समझो। कभी कभी लोग क्या बोलते हैं कि सर
सक्सेस नहीं मिल रही, क्या करें समझ ही नहीं आ रहा है। अब बताते हैं आपको 5 ऑर्डर बताते हैं प्रायोरिटी के, उसको नोट कर लेना अगर पॉसिबल हो सके, क्योंकि स्लाइड में मेंशन नहीं है इतनी सारी चीजें। सबसे पहली चीज, अपनी लाइफ के अंदर आप प्रायोरिटी उस चीज को दीजिए जो आपको चाहिए, और हम तो कहते हैं चाहिए नहीं, चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, उसके लिए जो करना पड़े करो, बट कुछ गलत गलत मत कर देना, वरना कहो सर आप ही ने कहा था कुछ भी करने के लिए, मैंने तो कर दिया कुछ भी नहीं। सर ऐसे काम नहीं चलेगा, काम वो करो जिससे अपना भी भला हो और दूसरे का भी भला हो। सेकंड थिंग, सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट थिंग पे वो चीज रखो जो आपको चाहिए ही चाहिए। सेकंड नंबर पे रखो आप वो सिस्टम जिस सिस्टम की बदौलत आप उसको अचीव करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि विदाउट सिस्टम यू कांट डू एनीथिंग। कॉलेज है, आज कॉलेज का भी एक सिस्टम है, सुबह 9 बजे आना है, 1 बजे लंच होगा, उसके बीच में 4 पीरियड चलेंगे, लंच के बाद 2 या 3 पीरियड चलेंगे, शायद बहुत के नहीं चलते होंगे, लंच से पहले ही चलते होंगे, बाकी बाद में कुछ भी, ठीक है। तो फिर 5 बजे छुट्टी होनी है, ये सारी चीजें होती है ना। तो एक सिस्टम है, ड्रेस में आना है, टाइम से काम करना है, होमवर्क जो दिया जा रहा है थोड़ा बहुत वो करके लाना है, असाइनमेंट सबमिट करने हैं। तो एक सिस्टम बना हुआ है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। तो आपको जो चीज चाहिए ना उसका भी एक सिस्टम होता है। आपको क्या करना है, आपको सिस्टम से कनेक्ट रहना है। कोई भी चीज कॉलेज के अंदर हो, कॉलेज के सिस्टम से कनेक्ट रहो, आप जिस भी फील्ड में हो, जॉब कर रहे हो, जॉब के सिस्टम से आप कनेक्ट रहिए, ठीक है। और फाइंड अ मेंटर, एक मेंटर की बहुत जरूरत होती है, चाहे आप किसी को भी उठा लो, कोई भी, मतलब आप कोई पॉलिटिशियन ले लो, कोई भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ले लो, कोई भी बिजनेसमैन ले लो, कुछ भी ले लो। उन सब ने क्या किया, उन्होंने एक अपने मेंटर को चूज किया है और उसकी हर एक चीज को, छोटी से छोटी चीज को फॉलो किया है। अभी अभी उनका क्या नाम है, सॉरी मैं थोड़ा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी कि उन्होंने एक बच्चे को कुछ चीजें बताई थी, तो उसने बताया था बच्चे ने बाद में अपने सक्सेस सेमिनार में कि सर मेरे जो सीनियर्स थे ना, मेरे जो मेंटर्स थे ना, वो पानी कैसे पीते थे, मैंने वो चीज तक कॉपी की थी। पानी का गिलास कैसे उठाते थे, उसको कैसे पानी को पीते थे, कैसे गिलास को रखते थे, हर एक चीज को कॉपी किया था। तो मेंटर को चूज कीजिए, उसकी हर एक चीज को आप कॉपी कीजिए। हम कहाँ पर थे, सबसे पहली चीज आपको जो चीज चाहिए, सेकंड चीज आपको चाहिए उसका एक सिस्टम, थर्ड चीज, थर्ड नंबर पे आती है आपकी फैमिली। आप फैमिली को प्रायोरिटी दीजिए। अब देखो आप कह रहे हो सर फैमिली को थर्ड नंबर पर लेकर आए, सर अगर आपके बिना आपकी फैमिली में काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए जब तक आपकी जरूरत ना हो, क्योंकि आपको चाहिए जो चीज वो चाहिए ही चाहिए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर बनाना पड़ेगा। और चौथे नंबर पर लेकर आइए एंटरटेनमेंट अपना, ठीक है, लेकिन 5वें नंबर पर लेकर आइए अदर थिंग। लेकिन हम देखते हैं आज तो सारा उल्टा पुल्टा ही हुआ पड़ा, ठीक है। अगर सक्सेस नहीं आ रही ना इस ऑर्डर को जानने के बाद, तो हम आपको गारंटी देते हैं इन 5 में से ना कुछ ऊपर नीचे जरूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गोल्स फॉर टुडे, आज के लिए कुछ गोल्स हैं। चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। बिल्ड क्रिएटिव कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्रिएटिव बनाएं, ठीक है। हमेशा रचनात्मक रहें, थोड़ा खुरापाती रहें, बट गलत वे में नहीं, एक सही वे में, ठीक है। और बाकी सारी प्रॉब्लम्स तो आएंगी, परेशानियां तो आती जाती रहेंगी, ठीक है। बाकी आपको देखना है कि हमें कैसे निपटना है। मेंटर की बहुत जरूरत है, प्लान की बहुत जरूरत है। विद पेपर पे प्लान करें, कोई भी प्लान दिमाग में ना रखें, प्लान पे उसको करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज का सेशन बस इतना ही रखेंगे। So now I would like to conclude the session by handing over to our HOD of Mechanical Engineering to give the vote of thanks. हेलो, हाँ निशांत जी, ये बताइए कि इसमें फ्यूचर ग्रोथ क्या है लोगों का? किस चीज में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में या फिर सर जो अभी अभी सेशन लिया हुआ है उसमें? हेलो, यस सर। निशांत जी, हम ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि फ्यूचर ग्रोथ क्या है, मतलब अगर कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है तो क्या ग्रोथ है? सर फ्यूचर ग्रोथ 2025 तक सर ये जो इंडस्ट्री है 65,000 करोड़ का टर्नओवर टच करने वाली है। और सर इसमें से होता क्या है, मैं सर इसमें डिटेल में तो बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वो वाकई में एक अच्छी है, सबसे पहले आप उसकी पॉलिसीज को चेक करें। उसमें होता क्या है सर, अप्रोक्स 36% जो उनका टर्नओवर होता है वो हम लोग जैसे लोग होते हैं ना, आम जनता या आम लोग, उनमें वो सर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर बहुत सारा यही सारी चीजें हैं कि वो
65,000 करोड़ को टच करने वाली है। और सर हमने सारी लीगलिटीज और पॉलिसीज को चेक किया हुआ है। तो क्यों आज सर जैसे कि बीटेक करने के बाद हमने इस पे रिसर्च किया और देखा 10 लाख रुपया बर्बाद तो नहीं बोलेंगे सर, लगाने के बाद अगर हम चाहते सर जॉब भी कर सकते थे। लेकिन सर कुछ चीजें थी जिनकी वजह से हमने इसको फिर चूज किया। और सर जो हमारे बड़े भैया हैं जो डॉक्टर हैं सर, उनके साथ हमने करना इसको शुरू किया। सर फ्यूचर में बहुत मतलब बड़े बड़े अचीवमेंट्स होने वाले हैं सर। 2021 की हमने बहुत बड़ी प्लानिंग करके रखी हुई है। तो यही सारी चीजें सर। अगर किसी को पर्सनली कुछ पूछना है तो हम अपना सर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी दे देंगे, पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर कोई इसमें न्यू कमर्स हो तो उसकी आप डेवलपमेंट स्किल के लिए कुछ करते हो, या बंदे को पास पहले से ही अपनी डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए बातचीत करने का? There is no need to sir डेवलपमेंट स्किल सर। हम उसको हर एक पर्टिकुलर वे पे ट्रेनिंग देते हैं। मतलब मैं सर आपको बताऊं, अभी दिल्ली में जो सर हमारी टीम है वहां पर एक मतलब एक पर्सन है, उनका नाम है पंकज। सर मैं आपको बताऊं वो इतने शाई थे कि वो सामने बोल भी नहीं सकते थे। मैं उनकी तह तक गया, मैंने पूछा ऐसा हो क्यों रहा है। सर पता चला कि वो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, कुछ करते वगैरह नहीं थे सर। 11th क्लास के स्टूडेंट है वो। तो उनके जो सीनियर थे वहां पर हमारी टीम से, तो हमने उनको कहा कि आप इनको अपनी कनेक्टिविटी में रखें, थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश करें। फिर हम लोग प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जब हम प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेजेंटेशन होती है, तो हमने उनको कहा कि आज आप दीजिए प्रेजेंटेशन। वो कहते हैं सर मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हमने कहा क्यों नहीं हो पाएगा? तो सर बोलते हैं ना थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो हमने उनकी पीठ थपथपाई और हमने उनको बोला कि नहीं आप कर सकते हो, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको तो सब आता है। ठीक है सर, हमने उनको क्या इनकरेज किया। सर इनकरेज किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ उन्होंने 50% जो हमारे प्रेजेंटेशन थी एकदम सही तरीके से की सर, बिना रुके बिना झिझके। appreciation is most important sir in any field, I want to say. और भी किसी को कुछ पूछना है? If anybody have any question, anyone. Nishant, I want to know, please clarify one question. कि first thing कि for as a student, most of the students during the study focusing towards the getting the job, direct job, but you are choose the direct selling company Vestige. So how you can suggest the student who are now pursuing BTech now go for the such type of direct selling industry or direct selling institute as compared to direct getting the job, means कि कैसे कोई स्टूडेंट जो है डायरेक्ट सेलिंग जॉब को चूज करे एज कंपेयर टू जॉब के? तो अगर इसमें आप थोड़ा सा डीपली क्लेरिफाई करें तो अच्छा ही होगा। और नेक्स्ट थिंग ये रहेगा कि दैट इज ए वेस्टेज, दैट इज ए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो मटेरियल को सप्लाई करती है। बट हम ये चाहेंगे कि एज ए फॉर ए स्टूडेंट और द स्टूडेंट और द अदर participant who are interested to create a such type of network, their own network for direct selling, तो इस तरह का कोई नेटवर्क अगर डेवलप करना हो तो आप टाइम थोड़ा सा उसको ब्रीफ में बताएं कि क्या करना पड़ेगा। बिकॉज आपकी वेस्टेज वेल डिफाइंड, जैसा कि इंट्रोडक्शन पीरियड में भी कहा गया था कि एक बड़ी कंपनी है, नेटवर्किंग है, इसका टर्नओवर है, और आपको भी रिसेंटली 1 or 2 years में यू कैन गेट ए ब्रांच डायरेक्टर। तो दैट इज ए डायरेक्टर, दैट इज एक सिंबॉलिक प्रेस्टिजियस डिग्नेशन। तो अगर कोई सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो दो चीज को पहले आप क्लेरिफाई करें कि स्टूडेंट डायरेक्ट जॉब को ज्वाइन करके इस तरह का क्या नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, और अगर वेस्टेज में नहीं जाना चाहते तो क्या इस तरह का नेटवर्क क्रिएट करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, और मतलब रिसोर्स के टर्म में या मैन पावर के टर्म में या कुछ कितना पैसा लगेगा, तो इसके टर्म में थोड़ा सा आप क्लेरिफाई करते तो आई थिंक वो अच्छा होगा, बेटर होगा। तो निशांत प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच सर इतना अच्छा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सबसे पहले आपने पूछा कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चूज करेंगे कि वो हमारे लिए बेस्ट है या नहीं।
सर इसको हम सीधा कंपेयर करते हैं किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल को चूज करने से। जैसे कि आज हम सभी लोग, जैसे कि हमने सर बीटेक को बीबीडी एनआईटीएम से किया। सर बीटेक के बारे में, सर बीबीडी एनआईटीएम के बारे में पहले जाना कि सर जो बीबीडी एनआईटीएम हमारा कॉलेज है वो कैसा है, कब से है, क्या उसकी मतलब सर आउटपुट उसने दिए हैं वो कैसे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, कब से था, ये सारी चीजें मतलब कुछ उसके हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। उसी तरीके से सर हमने इस चीज को जाना और फिर सर उसके बाद हमने बीटेक को बीबीडी एनआईटीएम में एडमिशन लेकर के पढ़ना शुरू किया। ठीक उसी तरीके से सर जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको आप सर अगर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप देखें कि क्या हमारे लिए सही रहेगा। सर मैं आपको बताऊं, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते हैं आज बहुत सारे लोग और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं। तो इससे पहले अच्छा रहेगा कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन करनी चाहिए। कम से कम अपनी 5 साल की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए कि अगर मैं जॉब में जा रहा हूँ तो मैक्सिमम से मैक्सिमम में क्या कर सकता हूँ और मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगा। अब आप उठाएं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को कि इसकी क्या हिस्ट्री है, जहां पर हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, क्या हमारे सीनियर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनकी क्या ग्रोथ रेट है, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं और क्या हम उनका साथ पकड़ के हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। सर अगर कोई इसको ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना चाहेगा नए लेवल पर तो सर हम रिकमेंड तो नहीं करेंगे, लेकिन सर देयर आर मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सर मैं आपको बताऊं, आज 16 साल से वेस्टीज मार्केट में है और फील्ड में है सर, उसने अपना एक नाम बनाया हुआ है। सर इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सर जानना बहुत जरूरी है। आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, इस बात है स्टूडेंट आपको स्टार्ट करने की तो आप बेशक करते हैं। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है, फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल है। जब आप करना चाहें तब आप इस चीज को कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को भी ग्रो कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और छोटी छोटी चीजों को भी आप ग्रो कर सकते हैं। और अमूमन सर मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको केवल पैसा कमाना है तो आप कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन पैसे से ज्यादा अगर आपको लोग कमाने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग सर इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर करियर। हेलो, थैंक यू निशांत। हेलो ओके सर। ओके, थैंक यू निशांत जी। और सर, जैसा क्वेश्चन कि रह आपने गया। clear- हेलो हेलो सर, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल। यस प्लीज। सर जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं आप, एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वैसे नाम ले भी नहीं, उसका नाम था EBIZ, ईबीज कंपनी था एक। जी सर क्या हुआ कि लोग तो ज्वाइन हुए, मतलब काफी लोग ज्वाइन किए उसको। अभी देखेंगे बड़ा अच्छा नाम था उसका, लेकिन एक बैग जो है उसको क्या हुआ कि पूरा एकदम लॉस में चली गई। पता नहीं क्या रीजन था, अभी ज्यादा एग्जैक्ट मुझे पता भी नहीं, पेपर में तमाम सब कुछ निकले। तो अगर हम इन दिस केस, अगर ये जो आपकी कंपनी मतलब वाली जो कंपनी है, अगर इसके साथ होता है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? मैं बताता हूँ। और कोई इतना ही है ना? ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। इसीलिए तो कहता हूँ कि ना सबसे पहले आप प्रोफाइल चेक करो, पॉलिसीज चेक करो उस चीज। अब हम आपको बताते हैं, देखो हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे किसी भी चीज की, लेकिन हम रियलिटी है वो जरूर बताएंगे आपको। रियलिटी सर इसकी ये है कि आप जब भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको ये चेक करें कि वो आपकी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है या वो कस्टमर ओरिएंटेड। दूसरी चीज आप ये चेक करें वो उसका सिस्टम क्या है, वो जनरेशन है या फिर वो बाइनरी है। अब हम आपको दोनों में डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहली चीज, अगर कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी है, मैं आपको बता दूं, कंपनियां लॉस में जाती हैं और कंपनियां भागती भी वही हैं जो कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं। हम आपको इस बात को दावा दे सकते हैं। मान लो 10 या 15 हजार रुपए से उन्होंने ज्वाइनिंग कराई, आपको पता होगा अभी अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि ईविस थी वो सर लॉस में कैसे चली गई। ठीक है, वो कस्टमर ओरिएंटेड कंपनी थी। 10 या 15 हजार आपको पता होगा, मुझे नहीं पता उसके बारे में इतना भी, वो पैसे लेके ज्वाइनिंग कराती थी। और दूसरी चीज सर वो बाइनरी और थी। ठीक है, वो होते ना हम दो, फिर हमारे दो, फिर उन दोनों के दो दो। ठीक है, अब आप बताओ, चलो मान लो हम कर लेंगे, आप कर लोगे, क्या इंडिया में सारे लोग ऐसे हैं 10 या 15 हजार रुपए की ज्वाइनिंग कर लेंगे? एक चीज का ध्यान रखें, पैसा आपके पास तभी आएगा जब आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। अब नेटवर्क ग्रो तब करेगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे। आप सोचो, 10-15 हजार रुपए का पैकेज आप दे रहे हो किसी को, हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता सर इस चीज को। आप वो काम करो, देखो इन्वेस्टमेंट में और स्पेंडिंग में फर्क होता है। जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग ईवीज कर लेते थे, ठीक है, 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग कर ली, बोलेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। हमें पता है कि भैया वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन कल को आकर के यही कहेंगे कि अरे पैसे तो हमने भी लगाए थे, नेटवर्क मार्केटिंग तो हमने भी की थी, हुआ तो मेरा भी कुछ नहीं।
इसीलिए तो कह रहे हैं आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी को ज्वाइन करें, और जहां तक हो सके आप जनरेशन सिस्टम को ज्वाइन करें, इंजीनियर्ड प्लान को ज्वाइन करें। उसमें होगा कि आपके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं, आप एकदम फ्री होते हो। हमने बहुत बहुत बड़े सीनियर्स की मीटिंग्स को सुना है और समझा, उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है, क्रिटिसाइज नहीं है ये, रियलिटी। चलो मान लो स्टार्टिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक टाइम आने के बाद आप इंडिया में इतिहास उठा करके देख लीजिए इस चीज का, आज तक जो 2 लैग होती है ना, जैसे बाइनरी है ना, तो आपके नीचे 2 ही ज्वाइनिंग आएंगी, उसमें होता है सर मैचिंग का सिस्टम, दोनों को करना पड़ता है मैच। तो ये इंडिया की हिस्ट्री रही है कि आज तक इंडिया में कभी दोनों लैग मैच करी ही नहीं। और नीचे जाकर के ना उसमें इतने मुंह खुल जाते हैं, इतने मुंह खुल जाते हैं, आप सोचो 1 से 2 खुले, 2 से 4 हुए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 132, 16 से हो गए आपके 32, 32 से 64, 128, 512 एंड 1024। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोचो इतने सारे मुंह आपके सामने खुल जाएंगे, आपको क्या समझ में आएगा। तो जनरेशन सिस्टम के ये सारे फायदे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो कंपनी होती है उसके ये सारे फायदे हैं कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट होंगे आपके एफएमसीजी, मतलब फास्ट, जो भी डेली नीड होते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक आपको यूज करने हैं, तो उसमें क्या होगा, बेसिक नीड्स की चीजें होती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये नहीं लगेगा कि हमको पैसा लगाना पड़ रहा है, आप पैसा कर रहे हो अपना स्पेंड, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। जब आप इन्वेस्ट करोगे तब आपको वहां पर रिस्क रहेगा, पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा या नहीं होगा, कंपनी भाग गई तो, कंपनी नहीं चली तो। रही बात भागने की और बंद होने की, आप बताओ। ठीक है, मुझे कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये बात, आपका क्वेश्चन था तो आपको एक सॉलिड आंसर देने के लिए मैं करूंगा। आज बीबीडी है, आज बीबीडी का इतना बड़ा नाम है। ठीक है, आप सोचो बीबीडी के लिए क्या सही रहेगा, कि इसको और ग्रो किया जाए या इसको यहीं बंद कर दिया जाए। जाहिर सी बात है भैया, और ग्रो करना, 20-25 साल लगे यहाँ तक पहुंचने में, नाम बनाने में। ठीक है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करें हमेशा जो एक इसका नाम हो, ठीक है, पॉलिसीज को चेक कीजिए, यही सारी चीजें। Hello. Any other? Hi. Okay, thank you, Nishanji. Any other question from student side, please? Hello. Any other query? हाँ, Hello. continue please. निशांत, यस सर। हाँ ये क्वेश्चन है हमारा। जी सर। देखिए हमारे पास, हेलो, जी जी, आपकी अगर हमारे आवाज आ पास रही स्ट्रांग है। आइडिया है तो हम इन्वेस्टर को इजीली अट्रैक्ट कर लेते हैं। किसी के पास आइडिया अगर वीक है, स्ट्रांग आइडिया नहीं, तो इन्वेस्टर को आप कैसे अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं कि आपके पास स्ट्रांग आइडिया हो। वीक आइडिया से भी एंटरप्रेन्योर्स अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए? देखो, 2 चीजें होती है ना, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अभी अभी कल हम एक, वो होता नहीं है सीरियल, जो बालवीर, शायद 2 देखते होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग, तो हम बालवीर का कल सीरियल देख रहे थे, बस थोड़ा सा ही देखा था, 5-10 मिनट का। तो शायद आप लोग देख रहे होंगे तो पता होगा, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। उसमें क्या होता है, एक व्हाइट कलर का लॉइन होता है, वो बालवीर से आकर के बोलता है कि बालवीर तुम्हें ना अब अपनी शक्तियां जो है ना वो वापस करनी पड़ेंगी। तो बालवीर बोलता है कि ठीक है, मुझे मेरी शक्तियां वापस करनी पड़ेंगी, मैं अपनी शक्तियां दे सकता हूँ, मेरी शक्तियां छीनी जा सकती हैं, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति छीनी नहीं जा सकती है। देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है ना, मैंने बोला ना, अगर आपका विजन क्लियर है, ऑलवेज बी अ विजनरी, आपको एक विजनरी बनना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए कहता है हमेशा, देखो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, आगे चल के जो प्रॉब्लम आती है ना, वो उन्हीं लोगों को आती है जो विजनरी थे ही नहीं, उन्होंने कभी किसी चीज की प्लानिंग की ही नहीं थी। आज आप बैठ करके प्लानिंग करो, यहाँ से हम कहाँ जाएंगे। आप उस इंसान से कंसल्ट करो जो आपको एक सॉलिड आंसर दे सकता है, सॉलिड एक तरीका बता सकता है। ठीक है, तो आपकी अगर विल अच्छी है ना, विल आपकी स्ट्रांग है, तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आपको इन्वेस्ट, मतलब देखो सर, मैं इस बारे में ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा इस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि अगर कोई आपका, मतलब खुद आपकी कुछ एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको करना है, तो हम इतना बोल सकते हैं कि हाँ, आप अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन सर बाहर से कैसे फंडिंग करानी है, उसका प्रोसीजर सर मेरे पास नहीं है। अगर कुछ पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। Okay, thank you, Nishanji. Any other query from student side? Any query? हेलो। Yes, So please. now I would like to
So now I would like to conclude by handing over to our HOD of Mechanical Engineering to give the vote of thanks. Okay, thank you, beta. Aman Singh, fourth year student. Now listen me. Aman Singh. बेटा Yes, sir. हाँ, यू आर मोस्टली फोकसिंग टुवर्ड डायरेक्शन. आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते हो कि हम कुछ नया काम करेंगे, तो कुछ आपके Yes. दिमाग में कुछ क्वेरी है जो निशांत सर से आप पूछना चाहेंगे? नो सर, मार्केटिंग फील्ड से तो सर नहीं क्वेरी है कोई. कुछ और क्वेरी अगर आप जानना चाहें, कैसे जॉब करेंगे सर या वो कुछ अपने विकास फील्ड से आपकी हो, रिलेटेड. अपने ही फील्ड से अगर कुछ आपके पास हो तो चलिए. ओके, सर एनी सोचते हैं अदर सर. स्टूडेंट? ठीक है, जब सोचना तो हम ही से पूछना. ठीक है, बिकॉज Yes, आपके sir. मेनी टाइम. ठीक है, तो कोई एनी अदर स्टूडेंट, किसी बच्चे को कुछ क्वेरी है तो? ओके, यहाँ पे अब क्वेरी Now नहीं है. everybody निशांत please जी. give the feedback. So now everybody तो please fill the feedback form. ओके, थैंक यू. एंड जो फर्स्ट तो हम हेलो अपने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, हाँ ओके, ऑर्गेनाइजिंग हेलो कमेटी को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा, और साथ साथ में निशांत जी को भी बहुत धन्यवाद रहेगा, बिकॉज आपके हमारे स्टूडेंट भी हैं, और हमारा स्टूडेंट अगर इस तरह से कोई स्टार्टअप लेता है, इंटरप्रेन्योर बनता है, तो न सिर्फ अपना ही भला करता है, बल्कि वो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी एक मार्गदर्शक का काम करेगा, एक रोल मॉडल प्रेजेंट होगा. तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे स्टूडेंट, आज हम बेसिकली फोकस करते हैं कि हमारा प्लेसमेंट कितना होगा, पैकेज कितना है, तो इन सब चीज़ों से अलग हट करके वी आर फोकसिंग टुवर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इंडिया, बिकॉज आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इस डायरेक्शन में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर भारत बने, स्किल इंडिया की तरफ फोकस करें, स्टार्टअप ले और इस डायरेक्शन में काम करें. तो इसके लिए हम जो है निशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा. साथ साथ ही पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बिकॉज ऑफ टेक्निकल उसी प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड आफ्टर नियर अबाउट द सम डिले. तो इसके लिए भी जितने हमारे पार्टिसिपेंट रहे, फैकल्टी रहे, स्टाफ रहे, और वो लोग कंटिन्यूस हमारे साथ रहे, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा. निशांत जी के लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत से टॉपिकों को टच किया है, और उनका एक जो स्लोगन था कि काम वो करो जिसमें सबका भला हो, तो बेसिकली हमारा आज का सेशन का ये मोटो भी था कि हम तो लोग जो इंटरप्रेन्योर के तरफ फोकस करें, स्टार्टअप की तरफ फोकस करें, या नेटवर्किंग टाइप का कुछ ही डायरेक्ट टू डायरेक्ट सेलिंग टाइप का कुछ नेटवर्किंग या कुछ लूप क्रिएट करें, एंड बेस्ड ऑन दैट लूप वी आर गोइंग इन टर्म ऑफ द इंटरप्रेन्योर. बिकॉज आपकी अगर गवर्नमेंट की जॉब की पॉलिसी के टर्म में अगर फोकस करते हैं, तो देयर इज ए लिमिटेड जॉब स्कोप आफ्टर द ग्रेजुएशन. बिकॉज ऑफ क्या होता जा रहा है कि जॉब लिमिटेशन के तरफ आप फोकस करें, तो रिसेंट में आप देखें कि जो टोल पे देखें, तो वहाँ पे अभी तक मैन पावर यूज होता था, और वहाँ पे मैन पावर लगता था, टोल टैक्स लेता था, फिर जो व्हीकल्स को पास देता था, व्हीकल्स पास होते थे. बट अब क्या हो गया कि हम टोल टैक्स को जो है ऑटोमेटिक स्कैन करेंगे, यानी कि गाड़ी की स्पीड पे देयर इज नो एनी चेंजेज, ऑलमोस्ट सिमिलर सेम स्पीड द व्हीकल टू बी क्रॉस द टोल टैक्स, और देयर इज ए स्कैनर, ऑटोमेटिक स्कैनर, हाई स्पीड कैमरा. तो आप सोचें कि जब हमारे पास गाड़ियों की लाइन लगती थी, गाड़ियों को 0 स्पीड पे लेते थे, और इस केस में हमारा जो एक वहाँ पे एक दो ऑपरेटर, एक दो सिक्योरिटी के मैन पावर जो रहते थे, जो कि आपका पैसा वो टोल टैक्स पे व्हीकल के लिए पास देते थे. बट अब क्या हो गया कि हमारी सिक्योरिटी की कंप्यूटर सिस्टम के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के, और जो भी डाटा कलेक्शन के आइटम से वो सब चीज़ें एलिमिनेट कर दी, यानी कि नियर अबाउट जो है 200 से लेकर के 500 तक के एम्प्लॉय जो है एक टोल टैक्स से जो है आज की डेट में आने वाले समय में बेरोजगार हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट उनके टर्म में आ जाएगा. तो अब सोचें कि जहाँ 24 आवर जो है नियर अबाउट जो 50 मैन पावर काम करते थे ड्यूरिंग, तो ये मैन पावर कहाँ जाएगा? तो अब ये मैन पावर कहीं ना कहीं जॉब के लिए मार्केट में आएगा, और मार्केट में क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंटी क्रिएट होगी, और जब अनएम्प्लॉयमेबिलिटी क्रिएट होगी, तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा. तो इसका सबसे बड़ा बेसिक कंसेप्ट क्या है
कि हम अपने इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाए। अब इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यहाँ पे हम सिर्फ बिजनेस को लेके ही नहीं चलेंगे कि हमको बिजनेस ही कर ले, हम जो भी काम कर रहे हैं जैसे कि इनका भी था, हमारे निशान जी का भी, कि जो भी काम करें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें और कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। तो जो भी हमारा काम है, अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं तो एग्रीकल्चर के काम को करें, अगर हम कोचिंग के तरफ जाते हैं, नेटवर्किंग के मार्केट में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, स्मॉल स्केल कोई वर्कशॉप खोलते हैं या कुछ इस तरह के प्रोडक्शन सिस्टम में खोलते हैं, बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी। तो जो हमारे पास है, अब ये चीज एक क्वेश्चन आता है कि क्या सबके सब लोग इंटरप्रेन्योरर बन सकते हैं क्या, सबके सब लोग काम कर सकते हैं क्या? तो दैट इज ए डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि सबके सब लोग जो हर एक काम नहीं कर सकते। बट अब आने वाले सिनेरियो क्या है कि हमको हर काम करने के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, यानी कि मल्टीटास्क टैलेंटेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन। तो हर आदमी की तरफ, अगर आज मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो ओनली थिंक फॉर द मैकेनिकल जॉब, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड नॉलेज भी जरूरी है, कि वो सॉफ्टवेयर बेस्ड उसके पास नॉलेज भी हो, उसको नेटवर्किंग का भी चीज आते हो, कुछ जो हो प्रोग्रामिंग भी उसको आता है। और जब भी आपके पास प्लेसमेंट के लिए डाटा आता है, यू कैन सी दैट की कंपनी हैज व्हाट डू यू कैन डू इन अदर फील्ड, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट क्या है। तो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल बेस या कंप्यूटर बेस का नॉलेज दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी जॉब रिक्वायरमेंट। यानी कि हर कोई आदमी ये चाह रहा है कि आपके पास मल्टी टैलेंट हो, लीडरशिप हो, स्किल्ड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, नॉलेज हो, सॉफ्टवेयर क्रिएटिव हो। तो सब कुछ चीजें हैं। और अगर हम जॉब की तरफ जाएंगे तो लास्ट सेशन में भी हमने बोला था कि जब हम जॉब की तरफ जाते हैं तो देयर इज ए लिमिटेशन एंड इज रिटायरमेंट एज, और उसके बाद आदमी जो है आइडल हो जाता है। अगर आपकी एज 60 साल में रिटायर हो जाते हैं और आपकी किसी की भी लाइफ 70 ईयर्स या 80 ईयर्स है, तो नियर अबाउट 20 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स जो है आदमी आइडल बैठा रहता है घर पे, और उस दौरान जो होल लाइफ में अर्न किया होता है उसी को रीयूज कर लेते हैं। यानी कि कंटिन्यूअस अर्निंग के लिए हमको फिर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ द जो वर्किंग या एम्प्लॉय सर्विस पीपुल है, इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो सोच नहीं पाते हैं कि हमको रिटायरमेंट के बाद अब क्या करें, टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस थीम को भी लिखेंगे, तो इसके थीम के बेस पे भी इंटरप्रेन्योरशिप या नेटवर्किंग टाइप का एनी टाइप ऑफ जॉब, नॉट ओनली फॉर दी वेस्टेज, देयर आर सो मेनी कंपनी वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। और हम निशांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि बहुत से फोरम पे उन्होंने स्मार्टली आंसर भी दिया, और जहाँ पे चूंकि लर्निंग फेज में है तो इसके लिए भी उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि जहाँ पे वो कुछ डिफिकल्टीज थी और कुछ भी awkward सिचुएशन जहाँ पे थी या जहाँ पे इंफॉर्मेशन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, तो उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और आगे हम चाहेंगे कि उसको और अच्छे से करें। और जो भी क्वेरी जाएंगे, चूंकि हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो निशांत जी के लिए एक चीज हम और भी कहेंगे कि प्रेजेंटेशन स्किल में थोड़ा सा मटेरियल को आने वाले समय में, बिकॉज आपकी नाउ ब्रांच डायरेक्टर है और आने वाले समय में वो गोल्ड और सिल्वर डायरेक्टर की तरफ जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन किया। और इसको जैसे जैसे इम्प्रूव करेंगे उनके लिए भी और हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी दैट इज ए गुड। और हम कहीं रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं कि हमारा एक स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरर है, या फिर वेस्टेज में आज के डेट में ब्रांच डायरेक्टर है, कल सिल्वर और अगले दिन गोल्ड बनता है, लिए भी इंस्टीट्यूट के लिए भी गौरव की बात होगी। और हम चाहेंगे कि जो बच्चे भी हमारे स्टूडेंट, तो वो इस टाइप की नेटवर्किंग जॉब को क्रिएट करें, नॉट ओनली फोकस टुवर्ड द डायरेक्ट जॉब। तो इस तरह की चीज़ों को छोड़ करके नेटवर्किंग और इस तरह की चीज़ों की तरफ वो फोकस करें। तो ओके, थैंक टू ऑल ऑफ यू अगेन, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सब लोग जो है प्लीज फिल दी फीडबैक फॉर्म, and based on this you can get the e-certificate. So thank you for all of the attending this session. And now session hand over to the Jawari Fatma. Okay, so Jawari Fatma, please take the mic. Thank you, everyone. Now, everyone, please fill the feedback form. Announce कर दें। Okay, thank you Nishan ji and Jawariya Fatma, our student, and thank all the participants. Now session is over, and thank you for attending the session. Okay, thank you. Session is now over. So host please leave the session. Okay, sir. Okay, sir.